جی ہاں دوستو، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر شہاب صاحب کے ساتھ ہوئی اس خصوصی گفتگو میں آپ لوگ کیا کیا چیزیں دیکھیں گے؟ دار ہو گئے، سنا مکھی، کعبے کا استعمال، دیسی ٹوٹکے، کیا کوئی فائدہ ہے ان چیزوں کا یا یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں؟ شخص جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جو ہے اس ٹائم پہ وہ نہ سانس لے رہا ہے، نہ کھانس سکتا ہے، نہ چھینک سکتا ہے، ہاں اس کے سلائیوا اگر اس کا نکل رہا ہے وہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دستانے پہن کے اس کو اور پورے بچوں میں کتنی دور بیٹھنا ہے ان کو، اور کتنی عمر تک کے بچے ماسک لگا سکتے ہیں. وہ بتاؤں کہ میرے خیال میں ویسے کامیابی کا ایک ہی ٹول ہے، اور وہ ہے کہ آپ جب یہاں سے کسی چیز پہ بلیو رکھتے ہیں اور دل سے وہ کام کرتے ہیں، کوئی بھی کاز ہے، کوئی بھی گول ہے، کوئی بھی چیز. السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد ثاقب، مائنڈ سائنسز ٹرینر، رائٹر اور سکسیس کوچ، اور آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں محمد ثاقب سکسیس ٹی وی کے اس نئے ایپیسوڈ میں. اور سب سے پہلے بھی ریکویسٹ ہے دوستوں سے، اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں. میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ڈاکٹر شہاب صاحب بیٹھے ہیں جو نیشنل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں اور اس فیلڈ میں پچھلے تقریباً 35 ایئرس سے اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت مسکراہٹ کے ساتھ جو ہائڈ ہو گئی ہے ماسک کے پیچھے، لیکن اپنا تعارف یہ خود کروائیں تو ہمیں زیادہ مزہ آئے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی میرا تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ثاقب صاحب کہ آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا. نام میرا ڈاکٹر شہاب ثاقب ہاشم ہے، میرا تعلق جو ہے بلوچستان سے ہے. میں 1985 سے جو ہے گریجویشن میں نے کی ہوئی ہے، ایز اے ڈاکٹر کام کر رہا ہوں، اور پچھلے کوئی 30-35 سالوں سے جیسے ثاقب صاحب نے کہا میں پبلک ہیلتھ میں سرو کر رہا ہوں. ویسے میں کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ ہوں، اور ایجوکیشن میری جو ہے وہ MPH میں نے جو کیا تھا یا ماسٹرز جو کیا تھا میں نے وہ لندن اسکول آف ہائی ٹراپیکل میڈیسن یونیورسٹی آف لندن سے کیا. اس کے بعد سے میں جو ہے آ کے پاکستان میں مختلف پوزیشنز پہ اور ایز پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کام. ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ انہوں نے بہت سے سیکٹرز میں کام کیا، لیکن آج کا جو کور ٹاپک رکھا ہم نے، جو کورونا سمٹمس کے دوبارہ سے ایک لہر پاکستان میں آ رہی ہے. آج ہم انٹرویو کر رہے ہیں 6 نومبر 2020 کو. تو ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ آج کورونا ختم ہو گیا یا دوبارہ سے واپس آ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے ہیلتھ پروٹوکولس فالو کریں، یا ہم دیکھ رہے ہیں جیسے پبلک میں دوبارہ سے ہینڈ شیک شروع ہو گیا، دوبارہ سے لوگ ہگ کر رہے ہیں، ماسک کوئی بندہ نہیں پہن رہا. کیا ضرورت ہے اس کی کہ دوبارہ سے ہیلتھ پروٹوکولس کو فالو کیا جائے؟ دیکھیے ہماری گورنمنٹ ابھی بہت اچھا انہوں نے جو ہے کیمپین چلائی ہوئی ہے. ہم ٹیلی فون کہیں کرتے ہیں، جو ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے، جب بیل ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے جو ہے پیغام چلتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ کرونا کے کیسز دوبارہ سے بڑھ رہے ہیں اور دوبارہ اس کی ریوائو. تو اس کی پروٹیکشن کے لیے مختلف جو ہے میجرز ہیں جو کہ گورنمنٹ بھی بتا رہی ہے. ریڈیو کے اوپر بھی آتے ہیں پیغامات، مختلف لوگوں کے انٹرویوز ہیں، جیسے ہم یہاں آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ جو جیسے ماسک ہم نے ابھی بھی پہنے ہوئے ہیں تاکہ جو ہے ایک دوسرے کی کو ہم اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی چیز ہے تو ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ نہ کریں. تو اسی طرح سے اب دوبارہ اس ٹائم پہ واقعی پاکستان میں اور پوری دنیا میں دوبارہ جو ایک آئی ہوئی ہے جس سے پولیو اس کے کووڈ کے کیسز وہ بڑھ رہے ہیں. اس کا لاسٹ پروف یہ ہے کہ کل ہی 5 نومبر کو برطانیہ میں 4 ہفتوں کے لیے دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگا دیا. تو وہی احتیاطیں دوبارہ سے ہم لوگ کریں، ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا، سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک پہننا. لیکن ہم ڈاکٹر صاحب سے بڑی ایڈوانس چیزیں پوچھتے ہیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے. اب ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ جس کو کھانسی شروع ہو گئی، اس کو نزلہ شروع ہو گیا، اور وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو گیا کہ یہ جو علامات ہیں کیا یہ کورونا کی ہے، کووڈ کی ہے، یہ مجھے نارمل موسمی بخار نزلہ زکام ہے. کیسے آئیڈینٹیفائی کرے کون سا بندہ ایسا جس کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اپنا؟ لیکن سب سے تو اچھی بات یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے جس سے ان کے سائن سمٹمس ہوں یا کوئی اور تکلیف ہو رہی ہو. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ کسی ڈاکٹر سے جو ہے کنسلٹ کر کے، اور جو جتنا بھی ہمارے یہاں پہ ہیلتھ سہولیات موجود ہیں اس حساب سے. ویسے جو ہے آپ سنتے ہوں گے ٹی وی کے اوپر اور جو ہے ریڈیو کے اوپر مختلف
जगहों से एलानात भी होते रहते हैं कि भाई नज़ला ज़ुकाम होना, खांसी होना, हल्की हल्की फुल्की खांसी इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी उसमें नहीं है, छींकें आना, उसके साथ जो है बुखार चढ़ना, जिस्म में दर्द होना, टेस्ट का और स्मेल का जो है वो वक्ती तौर पे चले जाना, इस किस्म की चीज़ें। उसके अलावा और भी एटिपिकल भी जो है इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, मगर मोस्ट कॉमन जो चीज़ें हैं वो यही हैं। तो अगर किसी को इस किस्म के साइन सिम्टम्स हों जिसमें उसको जो है, देखिए एक तो वैसे हर शख्स का बुनियादी हक है कि उसको अगर लगता है कि मुझे कोविड हुआ है तो उसको पता चलना चाहिए बाकी कि उसको कोविड है या नहीं है, सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए भी, और इसलिए भी कि अगर उसको इलाज की ज़रूरत है तो वो वक्त तक उसको इलाज भी वक्त के ऊपर उसको मिल जाए। तो सबसे अच्छा ये है कि डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, और जब आप टेस्ट कराने जाएंगे तो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो लोग भी साइन सिम्टम समझते हैं, और वो भी आपको ये बता सकते हैं कि जी नहीं आपको इस टाइम पे कराना चाहिए या नहीं। तो छोटी मोटी ये नहीं कि भाई हर चौथे दिन इंसान पहुँच जाए, पैनिक मच जाएगा, अननेसेसरी टेस्ट होने लगेंगे, इसलिए नहीं कि लोगों का टेस्ट नहीं होना चाहिए, सबका टेस्ट होना चाहिए, मगर हम तो कहते हैं कि प्रायोरिटी उनको होनी चाहिए जिनको पे हमें साइन सिम्टम के हिसाब से ज़्यादा शक हो कि इस शख्स को या मुझे इस टाइम पे कोरोना या कोविड से इफेक्टेड हो। क्योंकि बचपन से हम लोग कहानियाँ सुनते हैं जिन्हों भूतों की, हमारा दिमाग है शॉर्टकट की साइड पर ज़्यादा जाता है। तो कोरोना के साथ ही ऐसे लोग भी मार्केट में नमूदार हो गए, सना मक्खी, कावे का इस्तेमाल, देसी टोटके, क्या कोई फ़ायदा है इन चीज़ों का या ये सिर्फ सुना ही बातें हैं? कोई फ़ायदा देखा आपने किसी बंदे को फ़ायदा हुआ इन चीज़ों से? हम साइंस के उस दौर में हैं कि जहाँ पे जो भी चीज़ है उसका इफ़ेक्ट जो है वो रिसर्च से प्रूव होना चाहिए। इन चीज़ों पे चूँकि रिसर्च नहीं हुई तो मैं बीइंग अ साइंटिफिक पर्सन मैं ये नहीं कह सकता कि इसका कोई इफ़ेक्ट है या नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इसका हमें नहीं पता कि इसका क्या इफ़ेक्ट है उसके ऊपर, क्योंकि वो रिसर्च हुई ही नहीं। तो ये सब जो है ये कहने की बातें हैं, और इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं है। हमारी जो मेडिकल साइंस है हर चीज़ को रिसर्च के बाद देख कर प्रूव करके डेटा के साथ वो जो है उसको डेटा के साथ सबूत चाहिए कि हाँ इससे कोई फ़ायदा होता है या नहीं, जो कि इनके बारे में नहीं हुआ, इसलिए हम वसूल के साथ नहीं कह सकते कि इसका अच्छा असर है, बुरा असर है या क्या है। डॉक्टर साहब की बातों से हमने कंक्लूजन लिया कि नीम हकीम लोगों से, नीम हकीम टाइप की बातों से बचना है हमने, और एक साइंटिफिक इलाज की तरफ उस पेशेंट को लेके जाना है। अब एक बंदे को कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया और वो चला गया क्वारंटाइन में, वो तनाई में चला गया, वहाँ पर क्या करे, कैसे टाइम स्पेंड करे अपना, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा और फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ मिलेगी उसको? देखिए वो तो खुराक जो पहले खाते हैं वही खुराक खानी चाहिए ताकि जो है पूरी एनर्जी मिले। वाइटामिन्स हैं जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, विटामिन सी है, दूसरे वाइटामिन्स हैं, जो भी चीज़ उनको दी जाए वो बिल्कुल लेनी चाहिए। फल उस टाइम पे जो चल रहे हैं वो खाता रहे, अगर उसकी कंडीशन इजाज़त देती है कि वो ये कर सकता है तो नॉर्मल खुराक लेनी चाहिए, कोई उसमें जो ऐसी चीज़ नहीं है, ताकि वो एनर्जी जो उसको चाहिए वो मिलती रहे। उसके अलावा जो है फल हैं, फ्रूट हैं, जूसेस हैं, इस तरह की चीज़ें तमाम ये सब एनर्जी देने के लिए हैं और हमारे जिस्म को जो है उसी हालत में बरकरार रखें, क्योंकि बीमारी जब होती है तो लामहला जो इंसान कमज़ोर हो रहा होता है, बीमारी के साथ भी लड़ रहा है, और उसके बाद अगर खाना पीना नहीं खाएगा, खुराक कम हो जाएगी तो वो मज़ीद जो है उसमें कमज़ोरी आएगी और उसके इफेक्ट्स आएंगे। तो खुराक कोशिश करनी चाहिए कि जो पहले खाते थे नॉर्मल खुराक खाएँ जिससे उनको तकलीफ़ ना हो। उसमें मैं ऐड करूँ मेंटल हेल्थ के लिए कि मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है उसकी, तो एफर्मेशंस करे साथ साथ। वो कोरोना का जो पेशेंट है आईने के सामने जाए और अपनी आंखों में आंखें डाल के कहे आई एम ए चैम्पियन, आई एम ए विनर, आई कैन रिकवर फ्रॉम दिस डिजीज, आई एम ए ब्लेस्ड पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम एनर्जेटिक। अपने आप को पावर दे, अपने आप को बूस्ट करें। दिमागी तौर पर ये जंग जीतना मेरे दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जो बड़ी ज़बरदस्त मिथ चल रही है, कोरोना का एक बंदा एक्सपायर हो गया, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और लोग खौफ खा रहे हैं उसकी डेड बॉडी से भी, उसको अगर हाथ लगाएंगे तो शायद हमें भी ये वायरस शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या वो
मरीज़ मरने के बाद नुकसान पहुंचा सकता है किसी को, उसके जनाजे में जाना, करीब जाना, क्या करें उसके बाद? देखिए जी, जो ये बीमारी जो फैलती है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इस तरह से कि एक शख्स है, उसको कोरोना की बीमारी है, उसके अंदर ये जरासीम मौजूद हैं, तो सांस की नाली के ज़रिए वो निकलते हैं। जो उसमें कि छींक आना है, जिस तरह के दो शख्स आमने सामने अगर खड़े बात कर रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जैसे मैं बोल रहा हूँ ज़ोर से, तो इसके साथ छोटे ज़रात हमारे सलाइवा के निकलते हैं, उसके साथ भी निकल के और वो शावर की तरह अगले शख्स की तरफ जाते हैं। खांसी है, उसके साथ निकलेंगे। जब एक शख्स जिसके हाथ पे या जिस्म पे कोई कहीं किसी जगह पर अगर ये जरासीम मौजूद हों और वो उस चीज़ को टच करेगा तो वहाँ उसको लग सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो है वो दरवाज़ों की नॉब्स हो गई, इसीलिए बार बार कहते हैं कि अपने हाथों को आपने सैनिटाइज़ करना है। और चूँकि ये एब्जॉर्ब कहाँ से होती है, ये मुँह के ज़रिए जा सकती है, सांस की नाली के ज़रिए जा सकती है, उसके अलावा नाक से, उसके अलावा जो है आँखों से, अगर हाथ में जरासीम है और वो अपनी आँखों को चेहरे पे टच करते हैं बार बार लोग, उससे जा सकते हैं। जैसे मैंने मास्क लगाया, मैं इस पे आगे हाथ लगाऊँ और अपनी आँख पे आगे हाथ लगाऊँ, अगर मैं किसी ऐसी जगह से घूम कर आया हूँ कि यहाँ पे जरासीम जो है मौजूद हैं, तो वो मेरी आँख में जा सकते हैं और वहाँ से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये जो है ज़्यादा चांसेस ये है कि ज़िंदा इंसान से जाएंगे। एक शख्स जिसकी डेथ हो गई है और जो कि जो है इस टाइम पे वो ना सांस ले रहा है, ना खांस सकता है, ना छींक सकता है, हाँ उसके सलाइवा अगर उसका निकल रहा है वो है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दस्ताने पहन के उसको और पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसको गुस्ल देना है। जो कुछ भी करना है वो डॉक्टर्स बड़े आराम से, और जो लोग गुस्ल देने वाले हैं वो अपने आप को बचा कर और वो सब कुछ करें। मगर ये नहीं है कि अगर खुदा खास्ता कोई जो है मुर्दे की लाश पड़ी हुई है, आप उसके पास से भी गुजर गए तो उससे आपको कोरोना हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छी मिथ डॉक्टर साहब ने क्लियर की, जो दिमाग में हमारी कन्फ्यूजन थी कि हमने घबराना नहीं है, लेकिन साथ साथ हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो भी करने हैं कि आप जनाजे में गले मिल रहे हैं लोगों से और ताक़ीद कर रहे हैं, और मुर्दा बंदा तो नुकसान नहीं पहुँचा रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जो ज़िंदा लोग आपस में मिलेंगे, जो गैदरिंग होगी, उससे ज़्यादा खतरा है, उस मुद्दे से इतना खतरा नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और इसी तरीके से थोड़ी स्कूल्स की बात कर लें। स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हर स्कूल में नहीं रखा जा रहा, तो क्या बच्चों को ज़्यादा खतरा उसका, या वो हेल्थ प्रोटोकॉल्स फॉलो करके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो प्रोटोकॉल्स बताई हैं जो है लॉकडाउन के हिसाब से, या जो है सोशल या फिज़िकल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं, उसके हिसाब से कि बच्चों ने कितनी दूर बैठना है उनको, और कितनी उम्र तक के बच्चे मास्क लगा सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये चीज़, इसलिए उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ, मुख्तलिफ जो अच्छे स्कूल हैं, जो समझदार हैं, उन्होंने जो है शिफ्ट्स में बुला रहे हैं बच्चों को। जैसे कि भाई अगर 15-20 बच्चे एक क्लास में हैं, तो एक तो उनकी वो असेंबली गैदरिंग, और ख़ास तौर पे किसी कमरे में या अगर किसी मैदान में भी खड़े हैं तो दूर खड़े होंगे, और इस किस्म की चीज़ें ओमिट कर दी हमने। असेंबली है या इस किस्म की चीज़ें उनको ओमिट कर दिया। मुख्तलिफ़ टाइम पे बुलाते हैं बच्चों को कि जी आपने 20-20 मिनट या आधे घंटे के बाद एक क्लास पहुँचेगी, और वो इस तरह से कि एक जो है आधे बच्चे आ जाएं या 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं अगर जब बच्चे ज़्यादा हैं तो। इसी तरह से कोशिश ये करते हैं कि एक ही टीचर रहे, बार बार टीचर चेंज ना हो, और एक से ज़्यादा लोग जो है वो कमरे में, एक से ज़्यादा जो टीचिंग स्टाफ है उसके लोग ना हों, वो आपस में इकट्ठे वो लोग भी ना हों जैसे पहले हुआ करते थे, और इकट्ठे बैठ के बातचीत करना, वो करना। तो वो तमाम चीज़ों को अगर कोई मद्देनज़र रख के उसका प्लान करे तो उसका कोई हर्ज नहीं कि स्कूल खुल सकते हैं और वो जा सकते हैं, मगर इन तमाम प्रोटोकॉल के साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ। पूरी गुफ्तगू को समराइज़ करें डॉक्टर साहब की, तो एक स्टोरी सब समझ सकते हैं। एक शख्स नजूमी के पास गया अपना हाथ दिखाने, और उसको कहते हैं हाथ दिखा के आप मुझे बताएं मेरी किस्मत क्या कहती है। तो नजूमी ने उसको कहा कि भाई हाथ तेरा, तुझे पता हो तेरी किस्मत क्या है। तो यहाँ पर भी इसका हम कंक्लूजन करें कोरोना का, तो इससे बचना आपके हाथ में है। आपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने, आपने डिस्टेंसिंग रखनी है, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है आपने, ना सिर्फ अपनी सेहत का बल्कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन सब की सेहत की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। तो बेसिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। हम एक शॉर्ट सी वीडियो बना दें और अपने आप को इस बीमारी से दूर रखें। और डॉक्टर साहब से भी हम कुछ और टिप्स लेंगे कामयाबी के हवाले से, और उससे पहले आप देख रहे हैं खूबसूरत सी किताब मेरे पास है,
जिसका तारुफ भी मैंने एक वीडियो में किया था आपके साथ। घूमने फिरने के शौकीन है डॉक्टर साहब, न्यूजीलैंड में गए, इंग्लैंड में सर्विसेज दी उन्होंने और पाकिस्तान में भी ये मूव करते रहते हैं। तो ये खूबसूरत सी किताब डॉक्टर साहब, एक सफ़रनामा तारक साहब का, वियतनाम तेरे नाम, ये किताब गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू जी। और आपकी पर्सनल लाइफ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि कामयाबी के 3 टूल्स जो एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा अपने घर से निकल के कैसे इस मकाम तक पहुंचा, जो 35 साल से सर्व कर रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में और इंटरनेशनल लेवल पे भी खिदमत अंजाम दी। वो 3 हम पॉइंट्स पूछते हैं इनसे और मैं थोड़ा दूर हो जाऊँगा यहाँ पे ताकि आप लोग फेस भी। थैंक यू साकिब साहब, बहुत मेहरबानी। अब पहले तो मैं सबसे ये बताऊं कि मेरे ख़्याल में वैसे कामयाबी का एक ही टूल है और वो है कि आप जब यहाँ से किसी चीज़ पे बिलीव रखते हैं और दिल से वो काम करते हैं, कोई भी कॉज है, कोई भी गोल है, कोई भी चीज़ है, उसके लिए आप जो है बाकायदा इन्हीं प्रोटोकॉल्स के साथ कि मैं उस चीज़ पे आपको बिलीव भी होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे ये होगा और वाकई इससे वो उसी तरह से होता है। तो ये आपकी अपनी बिलीव है अपने ऊपर कि मैं ये काम कर सकता हूँ और इस काम से ये फ़ायदा होगा और मैं जो कर रहा हूँ ये कि अच्छी नीयत से अगर आप कर रहे हैं तो वो काम जो है कामयाबी होती है इंसान को और वो आगे जाता है। थैंक यू वेरी मच। पैशन की बात की, जो भी काम करना है दिल से करना है, इसको आसान कर लेते हैं। इतना काम करें, इतना काम करें कि आपके जिस्म का जोड़ जोड़ अल्लाह ताला के सामने पेश हो और आपके लिए दुआ करेगी इस बंदे को, या अल्लाह आगे बढ़ा दे। आपने अपनी किस्मत अपने पसीने से लिखनी है और आपका पैशन आपका प्रोफेशन होना चाहिए। और हम एक बार फिर थैंक यू वेरी मच कहते हैं डॉक्टर साहब को। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें इसको, लाजमी इसको अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें ताकि ये सदका जारी है, ये मैसेज लोगों तक पहुंच सके और लोगों की लाइफ जाए नेक्स्ट लेवल पे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।